देखिए, in this lecture we will discuss very important topic from stereochemistry, and it is the stereo selective and stereo specific reactions. These two types of reactions play a very important role in the subject stereochemistry. What is the meaning of stereo specific reactions? The reaction in which the reactant is already the stereoisomers, that is the geometrical isomers. It can be conformation isomers and by stereoisomers. And when you perform some reaction on that stereoisomer, it will give you some product which is very specific, therefore called stereospecific. For example, you see Z2 bromine is a stereoisomer, it is a geometrical isomer, therefore it is called as a stereoisomer. Z2 butene is the stereoisomer or geometrical isomer. When it reacts with the bromine, first of all it will form brominium ion. It's a brominium ion. This brominium ion, why it is achiral? Because it has a plane of symmetry. If you cut this, यहाँ से अगर कट करोगे इसको, if you cut this molecule, ये ऐसा कट करोगे, ये bonds ऐसा, so that will give you the two equal half. Therefore, it is a achiral. And when you attack bromine in another molecule, so there are chances of formation of two enantiomer. Okay? And their structures, Newman conditions are like this. One is 2R, 3R, another enantiomer is 2S, 3S. Mirror images. So addition of bromine to Z butene is what? It's giving you mixture, receiving mixture, or in which the two enantiomers are formed. One enantiomer is 2R, 3R, and another is 2S, 3S. This reaction is taking place through the formation of achiral brominium ion. Right? Just now we have seen which is achiral. Why? Because it contains plane of symmetry. And you see, geometry of olefin is maintained. This Z, we have taken Z olefin, so geometry is maintained in the intermediate brominium. Bromine minus the second bromide ion will approach. It has a true chance of attacking the either carbon 1 or 2, and it will go 50-50%, and it will get part of the receiving mixture. But when we go for the E butene, E2 butene means anti, we can say EZ isomer or trans butene बोल सकते हैं उसको. And same addition of bromine, so there is a product formation through the formation of a brominium ion, and the product is end up with what? The meso compound. What is a meso compound? Though we have discussed this in the previous lecture, but it's very simple. Meso compound is a compound in which the molecule show the molecule within the molecule there must be presence of two chiral carbon, and two chiral carbon, they are a mirror images of each other. Very simple. These two chiral carbons are mirror images of each other, and therefore they cancel each other. Therefore such compound is called as meso compound. Or we can say internal racemic mixture, internal racimates. This one. Only one compound is formed. And you see this intermediate is not the chiral. It is a chiral. Why? Because it do not contain the plane of symmetry. You cannot cut this into equal part, therefore it is a chiral. Bromine attack from either side, this or this. So and there are two chances, but both are same. If you rotate this, you get the same, and you can draw the Newman projection formula. You will say that it's a meso compound. There are many examples under this. So let us go for the enzymatic reaction. So we can say specificity is also present in the enzymes reactions. How? See. Let us go for one example. See the enzymes, they react only with one selective because they are highly specific. समझो एक enantiomer है
और उस पर एंजाइम को रिएक्ट करना है, ये दो इनहिबिटर है, पेयर है, मिक्सचर दी गया है, एंजाइम दो के साथ कभी रिएक्ट नहीं होगा, वो सिलेक्टिवली एक के साथ रिएक्ट होगा, दैट इज कॉल्ड selectivity of enzyme. It's called stereospecific. What is stereospecific reaction? The reaction in which reactant is always is a stereoisomer. एग्जांपल देख लीजिए आप, यू सी द एग्जांपल, ये मिक्सचर है समझिए, डी अमीनो एसिड एल अमीनो एसिड का रेसिन मिक्सचर है, आपने एसाइलेशन किया एसिडिक एसिड में, और आपको दोनों का क्या मिला, दोनों का रेसिन मिक्सचर का एनासाइलेटेड कंपाउंड, इसका भी एसाइलेशन हुआ, इसका भी ऐसा, डी का भी एल का भी, डी अमीनो एसिड का भी एसाइलेशन हुआ, एल अमीनो एसिड का भी एसाइलेशन है, 50% ये एसाइलेटेड है, दोनों का एसाइलेटेड एसाइलेशन हुआ, राइट, ये स्थिति। अब इसको क्या करेंगे हम, ये जो कंपाउंड है, दिस कंपाउंड when is going through the hog kidney acylase, okay, hog kidney, तो उसमें जो एंजाइम होता है उसे बोलते हैं असाइलेज एंजाइम, असाइलेज एंजाइम, दिस असाइलेज एंजाइम सिलेक्टिवली क्या करता है, only react with only one enantiomer, not all, okay, ये hog kidney means this is nothing but the one type of pig, okay, ये pig होता है hog, उसकी किडनी क्या करती है कि इसमें से दो में से एक को लेकर के उसमें का असाइलेज एंजाइम क्या करता है, सिर्फ डी को रिएक्ट करता है, एल को एज इट छोड़ देता है, इसी, यानी कि हमें बोल सकते हैं कि असाइलेज क्या करता है, सिर्फ एल को यूज करता है, एल का डीअसाइलेशन करता है और इसको असाइलेटेड ही छोड़ देता है, दिस इज अ वेरी सिंपल, सो दिस इज अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ स्टीरियोस्पेसिफिसिटी, यानी कि बहुत पर्टिकुलर रिएक्शन होती है, हाईली सिलेक्टिव, देयर विल बी स्टीरियोस्पेसिफिक, ओके, यानी एक ही स्टीरियोआइसोमर को स्पेसिफिक रहना, and that reaction is called as stereospecific. Fine. So you can see this reaction easily, how the hog kidneys containing enzyme acylase target only selectively one enantiomer, even the mixture is given, ये mixture दिया था हमने इसको, उसका एसाइलेशन तो किया हमने मिक्सचर का, लेकिन उसमें से एक को ही क्या करता है, रिमूव करता है, एसाइलेशन डीएसाइलेशन करता है और दूसरे को छोड़ देता है। एक और एग्जांपल है हमारे सामने, ऑक्सीडेशन ऑफ ब्यूटीन, वो ई और जेड ब्यूटीन का, तो ये भी बहुत अच्छा एग्जांपल है फॉर स्पेसिफिक रिएक्शन। इसमें क्या होता है, एल्कीन जो होता है जेड और ई एल्कीन, इसको हम जब पर ऑक्सी एसिड से ट्रीट करते हैं तो स्पेसिफिक वे में एडिशन होता है, यानी कि अगर सिस जो ब्यूटीन है तो उसका आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो एक अलग प्रोडक्ट मिलेगा और ट्रांस का अलग प्रोडक्ट मिलेगा, सिस जो देगा मीजो प्रोडक्ट देगा, और ट्रांस क्या करेगा, रेसिमिक देगा, है ना, ये कंडीशन चेंज होती है, you see, ये Z है, Z दो मिथाइल आपकी तरफ है और ये H दो पीछे है और ये ऑन द पेज है, फाइन, यस, नाउ यू सी है when you perform the epoxidation of this molecule, so delivery of oxygen takes place, this oxygen delivery takes place here, Z alkene will deliver oxygen और वो यहाँ जाता है, और इसमें क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री है, प्लेन ऑफ सिमेट्री मींस इंटरनल मॉलिक्यूल में दो दो कायरल सेंटर हुए हैं, ये भी कायरल सेंटर है और ये भी कायरल सेंटर है, इसमें इस प्लेन ऑफ सिमेट्री इसको आप इक्वली कट कर सकते हैं, देयरफॉर इसको बोलते हैं मेसो कंपाउंड। लेकिन अगर आप हम बोल सकते हैं कि सिस टू ब्यूटीन जो है, ये सिस टू ब्यूटीन के जो फेसेस है, ये टॉप फेस एंड डाउन फेस, दे आर होमोटोपिक, चाहे पर ऑक्सी एसिड यहाँ से अटैक करे ऊपर से, यहाँ से जैसे यहाँ किया है,
या फिर यहाँ से करे, उसमें प्रोडक्ट में कोई चेंज नहीं आने वाला है, आपको सेम प्रोडक्ट मिलने वाला है, ठीक है। दिस इज अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन। ये है ट्रांस ब्यूटीन, और इसको E2 ब्यूटीन बोलते हैं। इसका जब एपॉक्सीडेशन करोगे आप तो चेंज कुछ नहीं होने वाला है, डिलीवरी ऑफ ऑक्सीजन विल बी सेम, इट either it come from the top और फ्रॉम डाउन, लेकिन दो कंपाउंड्स अलग अलग रहेंगे। जब भी इधर से आएगा, अब इसमें पिन ऑफ सिमेट्री नहीं है, यू कैन नॉट कट इन इक्वल पार्ट, नहीं कर सकते आप। तो ये मिथाइल पीछे, ये मिथाइल आगे, ये H आगे, ये H पीछे, इससे पहले नहीं था। जब ये Z ब्यूटीन था तो दो मिथाइल आगे थे, दो H पीछे थे, जैसा कि हमने इससे पहले स्लाइड में देखा है। एक तो ये बनेगा, दूसरे में क्या है, O नीचे आएगा, तो ये बाकी कोई चेंज नहीं रहेगा, ये सिर्फ रहेगा। लेकिन इनैंशियोमर ऑफ दो इनैंशियोमर, क्योंकि अब इसका नॉमेनक्लेचर ये R, अगर ये कार्बन R है तो यहाँ पर S हो गया, और ये अगर S है तो ये R हो, वाइस वर्सा। ये दो जो कंपाउंड है, they are enantiomer, but racemic है, वो racemic, equally 1:1, 50-50%, right? So overall, both the phases are same. They are enantiotropic, okay, because two enantiomers are going to form, okay, and epoxidation from either side give the enantiomer, there is a racemic action, right? Yes. Then stereoselective reactions. What is the meaning of stereoselective reactions? Again, it's a very interesting concept. So the major greatest difference between the two specific stereoselective is that in stereoselective reaction, reactant जो होता है ना वो स्टीरियोआइसोमर नहीं होता है। yes, ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। जैसे कि हमने देखा है स्टीरियो स्पेसिफिक में रिएक्टेंट क्या है, वो स्टीरियोआइसोमर है, यानी Z अल्कीन, E अल्कीन, ज्योमेट्रिकल आइसोमर है ना, उसको बोलते हैं स्टीरियोआइसोमर। लेकिन स्टीरियोसेलेक्टिव में वैसा नहीं होता है। स्टीरियोसेलेक्टिव में जो आपका रिएक्टेंट होता है वो स्टीरियोआइसोमर नहीं होता है, बल्कि वो अकायरल होता है, ठीक है। और जब उस पर आप रिएक्शन करते हो तो फिर वो स्टीरियोआइसोमर बनाता है, एक्सक्लूसिवली एक बनाता है, ये मेजर बनाता है, ओके। देखते एग्जांपल, ब्रोमिनेशन ऑफ साइक्लोहेक्सीन लेते हैं। अब साइक्लोहेक्सीन जो है वो तो, साइक्लोहेक्सीन इज नॉट दी स्टीरियोआइसोमर, इज अकायरल है ना, इसको कट कर सकते हैं, इसे प्लेन ऑफ सिमेट्री। जब ब्रोमिनेशन करोगे तो ब्रोमीन जाकर ऐड होगा, पहले ब्रोमीनियम आयन बनेगा, और ये ब्रोमीन को अटैक करने के दो चांसेस है। लेकिन ये एक तरह एक साइड से बहुत ज्यादा अटैक करेगा, 95% एक ही कंपाउंड बनेगा इसका, ओके, क्योंकि इसको स्टेरिक हिंड्रांस रहेगा, ओके। ये ब्रोमिनियम आयन तो टॉप पर बन गया, ये Br माइनस को दो चांस नहीं अटैक करने के, एक ही चांस है वो बोलते हैं, और वही कार्बन के। तो इसका ये जो स्ट्रक्चर है देखिए, फ्लैट रिंग है, एक्चुअली फ्लैट रिंग नहीं होती है, ये तो चेयर फॉर्म में होती है। ब्रोमीन विल अटैक फ्रॉम है, ये ब्रोमीन नीचे आएगा और ये बॉन्ड टूट के यहाँ जाएगा, एक ब्रोमीन हो जाएगा। अब ये इसमें क्या है, दिस इज नॉट द सिमेट्रिक और प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, ये कायरल कंपाउंड होगा, दिस इज द कायरल मॉलिक्यूल, और 95% क्या है, ये रेसिड्यू मिक्सचर है। मीन्स इसमें एक कंपाउंड ज्यादा बनता है, दूसरा कंपाउंड कम बनता है। एक्सप्रेशन देख लीजिए कि व्हेन साइक्लोहेक्सीन इज ब्रोमिनेटेड, द प्रोडक्ट इज वन स्टीरियोआइसोमेरिक प्रोडक्ट ट्रांस 1,2 डायब्रोमो साइक्लोहेक्सीन, ट्रांस 1,2 डायब्रोमो, तो ये स्टीरियो सिलेक्टिव प्रोडक्ट हो गया, राइट, स्टीरियो सिलेक्टिव, नॉट स्टीरियो स्पेसिफिक, राइट। This stereoselective reaction bromine, okay, you can compare with the ब्यूटीन का जो हमने किया है ब्रोमिनेशन, उससे कंपेयर कर सकते हैं। तो ब्रोमिनेशन में क्या है, we have seen in bromination, we have seen that in bromination we have seen that it proceeds through the formation of cyclic brominium ion, इसलिए भी cyclic brominium ion बन रहा है, right, you see, right। लेकिन इन दोनों में डिफरेंस ये है कि दिस विल प्रोड्यूस
one of the major product in enantiomer while still specific reaction produce the racemic mixture or mesocompounds. This is called as what? The stereoselective reaction. Fine. Oh, 1 minute. Yes, now it's visible to you. Now see, so we can say इस पर जो ब्रोमीन का एडिशन हो रहा है वो एंटी एडिशन है, राइट? जैसा कि इससे पहले हमने देखा उसमें हो रहा है अपोजिट फेज से ब्रोमीन अप्रोच हो रहा है ब्रोमाइड आयन यहाँ पे बॉटम फेज से, और आपको एक प्रोडक्ट मिल रहा है ब्रोमीन और अपोजिट फेजेस। तो सिर्फ क्या मिल रहा है? ट्रांस 1,2 डायब्रोमोसैकराइड मिल रहा है एज ए रेसिड्यू मिक्सचर। सिस आइसोमर नहीं बन रहा है, देयर इज नो फॉर्मेशन ऑफ सिस आइसोमर, therefore it is called as stereo selective reaction। मींस एक स्टीरियो आइसोमर बना है ना, 1,2 डायब सिस बना है, सॉरी ट्रांस बना है, ट्रांस सिस नहीं बना है, and therefore it is called as no cis isomer is formed, trans only trans 95%, and therefore such reactions are called as stereoselective reactions। enzymes भी होते हैं stereoselective when they comes in contact with the prochiral molecule, they react with only one enantiotropic ligand or carbon or phase, and that such reactions are called as stereoselective reactions। example है, देखिए ग्लिसरॉल है, ग्लिसरॉल का जो पहला कार्बन है ये प्रो आर है और ये प्रो एस है। अब एंजाइम पर डिपेंड है कि वो किससे रिएक्ट होगा, दोनों भी CH2 है, CH लेकिन ये सिलेक्टिव है, प्रो आर पे जाता है बाय यूजिंग ग्लिसरोकाइनेज और उसका फॉस्फेट फॉस्फोराइलेशन करता है ट्राइफॉस्फेट एटीपीज। ओके, और ये जो है प्रो एस इसको छोड़ देता है एज इट इज। दिस इज द वेरी एग्जांपल ऑफ स्टीरियोसेलेक्टिव रिएक्शन। ओके, so this is what we have learned about the stereoselective specific reaction।